Desired lines are plotted in origin and destination studies. Origin and destination studies. In origin destination studies, it is used to determine travel pattern to traffic called desired line. They are useful when there is substantial change anticipated in the existing road network. The origin and destination study provide the basic data for determining the desired line, desired direction of flow. On the basis of these studies, desired lines are drawn. Desired line diagrams. One form of display that is common in transportation research is a map of desired line, portraying the flow from one zone to other zones. The desired line diagrams is very useful in understanding the travel pattern in a steady area and carrying out the requirement for the origin and destination studies. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं एक्सीडेंट स्टडीज़ के बारे में. इट इंक्लूड स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड सजेस्ट करोजिव measures at a potential location. It is also include evaluations of existing design. ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे की बात करते हैं. दिस स्टडी इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द नंबर the movements and the classification of roadway vehicle in a particular section of a traffic streams. This study is useful for geometric design of roadway and management of traffic. नेक्स्ट बात करते हैं sport speed studies. This study are used to determine the speed distributions of a traffic stream and vehicle speed percentile at the specific location, which are useful in making many speed related decisions. नेक्स्ट बात करते हैं द रफनेस इंडेक्स ऑफ रोड इज एक्सप्रेस्ड एज क्यूमुलेटिव डिफॉर्मेशंस ऑफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा इसमें. क्यूमुलेटिव डिफॉर्मेशंस ऑफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. द साइज ऑफ द स्टोन्स ऑन द पेवमेंट्स ये नहीं होगा. नंबर ऑफ पैचेज ऑन द पेवमेंट्स नहीं होगा. टाइप्स ऑफ द रोड ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट बात करते हैं रफनेस इंडेक्स और अनइवन इंडेक्स. Uneven surface increase riding comfort, fuel consumption, wear and tear of tires and other part and accidents. Roughness index is a cumulative measure of vertical undulation, deformations of the pavement surface recorded per unit horizontal length of road. The pavement surface conditions are commonly measured by using a equipment called bump indicator. Bump indicator क्या होता है? ये होता है 630 IRI की पावर 1/12. दिस इज पंप इंडिकेटर. इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स IRI बोला जाता है. फॉर ए गुड पेवमेंट्स अनइवन इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर. नेक्स्ट बात करता है द टॉप ऑफ द ग्राउंड. द टॉप ऑफ द ग्राउंड. द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड. सोलिंग नहीं होगा. बेस नहीं होगा. इसमें से नन ऑफ दीज होगा. द टॉप ऑफ द ग्राउंड विच फाउंडेशन ऑफ द रोड रेस्ट इज कॉल्ड. द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच फाउंडेशन ऑफ रोड इज. तो देख लेते हैं इसके बारे में फाउंडेशन ऑफ रोड के बारे में. तो सबसे ऊपर क्या होता है सील कोट होता है. उसके नीचे टैग कोट होता है. उसके नीचे प्राइम कोट होता है. तो ये क्या हो जाएगा STP. ठीक है सील कोट टैग कोट और प्राइम कोट. अब डिस्कस करते हैं ए पेवमेंट मे बी कंस्ट्रक्ट इन नंबर ऑफ लेयर एंड द टॉप लेयर हैज़ टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टू सस्टेन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस. In addition to wear and tear, the lower layer will experience the lesser magnitude of stress and low quality material can be used. The top of ground on which foundation of road rest in subgrades. इसमें पढ़ लेते हैं जो इसके ऊपर जो सबसे ऊपर होती हैं वो सरफेस कोर्स होता है.
सबसे नीचे जो होता है वो कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड होती हैं, वो कितनी होती है 150 से लेके 300 mm तक होती हैं। उसके ऊपर जो होती हैं वो होती हैं सब बेस कोर्स। क्या होता है सब बेस कोर्स? ये होती है 100 से लेके 300 mm तक। उसके ऊपर होती हैं बेस कोर्स। क्या? बेस कोर्स। ये होती है 100 से लेके 300 mm तक। इसके ऊपर होता है बाइंडर कोर्स। क्या? बाइंडर कोर्स। वो होती है 50 से लेके 100 mm तक। फिर आती है सरफेस कोर्स। वो होती हैं 25 से लेके 50 mm तक। नेक्स्ट चलते हैं। CBR test on soil is types of. CBR test on soil is a type of penetration test. That is penetration test. कैसे होता है देख लेते हैं। कंसेप्ट की बात करते हैं। CBR test is a strength test conducted on the soil by introducing the surcharge load at compaction rate of 1.25 mm per minute on a completely soaked soil sample, passing through 20 mm size 20 mm CBM सीप साइज। तो ये होता है CBR बराबर पीरो ऑफ सॉइल डिवाइड बाई पीरो ऑफ स्टैंडर्ड क्रस्ट एग्रीगेट इंटू 100। ये जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन mm। फिर होता है लोड कोरस्पोंडिंग इन डेल सेटलमेंट। PS बराबर होता है लोड फॉर स्टैंडर्ड क्रस्ट एग्रीगेट 85 mm। पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड लोड इज 2055 किलोग्राम। किसके लिए? 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। 2.5 mm पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड लोड जो होता है वो होता है 1370 2.5 पर। और स्टैंडर्ड लोड 5 mm पर। It is the types of penetration test. As every penetration value, we note down the load. Next बात करते हैं। The camber for cement, concrete and high type bituminous surface for heavy rainfall condition is क्या आएगा इसमें 1 in 50। The camber of cement, concrete and high type bituminous surface for heavy rainfall condition, that is 1 in 50। कैसे? कैम्बर कैंट इट इज़ द क्रॉस स्लोप प्रोवाइड टू रेज द मिडिल ऑफ द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर आर फॉलो एज द surface protection especially for the gravel and bituminous road and hence making it more durable. Subgrade protection by proper drainage and hence to make the surface of prevent more impervious. Quick drying of pavement which in terms of increased safety. The main subject of providing camber will be drain of rainwater from the road surface as quickly as possible, as rest options are ultimate results of the quick drainage of the water from the pavements. नेक्स्ट बात करते हैं कैम्बर टू प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेवमेंट आर सोन बिलो। फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पेवमेंट, दूसरा आता है हैवी रेन के लिए कितना चाहिए और लाइट रेन के लिए कितना चाहिए। सीमेंट, कंक्रीट एंड हाई टाइप्स बिटुमिन सरफेसेज होता है 1 in 50 हैवी रेन के लिए, और लाइट रेन के लिए होता है 1 in 60। उसके बाद में आता है थिन बिटुमिनियस सरफेस, इसके लिए हैवी रेन के लिए आता है 1 in 40 और लाइट रेन के लिए होता है 1 in 50। ठीक है। उसके बाद में आता है WBM ग्रेवल पेवमेंट्स, इसमें आता है 1 in 33 और लाइट रेन के लिए आता है 1 in 40। उसके बाद में आता है अर्दन रोड के लिए हैवी रेन के लिए आता है 1 in 50
और लाइट रेन के लिए आता है 1/30। ठीक है, तो आपको याद रखना सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस के लिए कितना होता है 150 से लेके 1/50 होता है। किसके लिए? हैवी रेन के लिए। और लाइट रेन के लिए होता है 1/60। थिन बिटुमिन के लिए कितना होता है 1/40 और लाइट रेन के लिए 1/50। ये हैवी टू लाइट है। ठीक है, HL। WM ग्रेवल पेवमेंट के लिए होता है 1/30 से लेके 1/40 तक। आर्दन रोड के लिए होता है 1/25 से लेके 1/33 तक। आपको ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, कैसे? 150 से लेके 160 किसके लिए? सीमेंट कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनस के लिए। थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए 140 से लेके 150 तक। WM ग्रेवर के लिए 133 से लेके 140 तक। आर्दन रोड के लिए 125 से लेके 133 तक। नेक्स्ट बात करते हैं, रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन्स इज प्रोवाइडेड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विद पेट्रोल। रैपिड क्यूरिंग cutback bitumen is proposed by the blending bitumen with the petrol. Cutback bitumens. Cutback bitumen is bitumen with less viscosity, which is achieved by the addition of the volatile diluent. Hence, to increase the fluidity of bitumen binder at a low temperature, the binder is blended with the volatile solvent. The viscosity of cutback bitumen and the rate at which the hardness on the rod depends on the characteristics and quality of the both bitumen and volatile oil used as a diluent. कैसे? The viscosity of the cutback bitumen and the rate at which hardness on the rod depends on the characteristics and quality of both bitumen and volatile used as a diluent. The cutback bitumen is available in a 3 types. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? RC रैपिड क्यूरिंग, MC मीडियम क्यूरिंग, SC स्लो क्यूरिंग। तो रैपिड क्यूरिंग की बात करते हैं। इन दिस बिटुमिन द फ्लक्स विद द नेफ्था गैसोलीन और पेट्रोल। इन दिस बिटुमिन इज फ्लक्स्ड विद द नेफ्था गैसोलाइन और पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता मीडियम क्यूरिंग। मीडियम क्यूरिंग में इन दिस बिटुमिन इज फ्लक्स्ड विद केरोसिन और हाई डीजल ऑयल। केरोसिन और हाई डीजल ऑयल किसके लिए? मीडियम क्यूरिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता स्लो क्यूरिंग के लिए। स्लो क्यूरिंग में क्या होता है? इन दिस बिटुमिन इज फ्लक्स्ड विद द हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस ऑयल। हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस ऑयल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, मीडियम क्यूरिंग and slow curing cutback are used for the priming and viscosity increases as the grade increase like RC100, RC1 and RC2. Next आता RT1 is the lowest viscosity used for the surface painting, but RT4 may be used for the premix in macadam. Next आता RT5 is used for the grouting which has highest viscosity. RT5 is used for grouting which has highest viscosity. Next आता MC2 will be thicker than MC1, but RC5 and SC5 will have the same viscosity. नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्री मीन स्पीड ऑफ रोडवे इज फाउंड टू बी 80 किलोमीटर पर आवर अंडर स्टॉप्ड कंडीशन। द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 8 mm. डिटरमाइन द कैपेसिटी फ्लो इन व्हीकल आवर्स और लेन। तो इसमें कौन सा आएगा? द फ्री मीन speed of roadway is found to be 80 km per hour under stopped condition. The average spacing between vehicle is 8 meter. Determine the capacity flow. तो निकालते हैं,
इसमें क्या दे रखा है, फ्री मीन स्पीड ऑफ रोडवे कितनी दे रखी है, फ्री मीन स्पीड ऑफ रोडवे दे रखा है आपको 80 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट दे रखा है इसमें स्टॉप्ड कंडीशन रेफर्स टू द जैम कंडीशन। सो स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल कितनी है, 8 mm, 8 मीटर ये दे रखी है एवरेज स्पेसिंग बिटवीन। उसके बाद क्या निकालना है, जैम डेंसिटी। कैसे निकलेगी जैम डेंसिटी, 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। तो ये 1000 डिवाइड बाई 8 करेगा तो कितनी बार जाएगा, 125 बार। सो क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे फ्री मीन स्पीड इनटू जैम डेंसिटी डिवाइड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 40, 2, 20, 20 पिंजो 100 और 24 और 1 25, 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी कैपेसिटी आएगी इसकी, 2500। नेक्स्ट चलते हैं, ये दे रखी है आपको कैपेसिटी फ़्लो और मैक्सिमम फ़्लो क्या होता है, क्यू मैक्स बराबर होता है BSF मतलब फ्री मीन स्पीड ये लिख रखा, और मैक्सिमम स्पीड एट जीरो डेंसिटी इंटू KJ जैम डेंसिटी डिवाइड बाई 4। जैम डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी एट जीरो स्पीड। उसके बाद में आएगा KJ बराबर आएगा 1000 डिवाइड बाई S। उसके बाद में आएगा स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल। ठीक है, ये सॉल्यूशन दे रखा है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस ऑफ 500 मीटर इन नेशनल हाईवे फॉर डिज़ाइन स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है, V दे रखा है अपन को 100 किलोमीटर पर आवर्स, रेडियस दे रखा है आपको 500 मीटर। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम ई इक्विलिब्रियम। क्या, ई इक्विलिब्रियम। तो वो हो जाएगा B² डिवाइड बाई 225 R। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू 500। ठीक है, इसको सोल्व करो कैलकुलेटर से। ऐसे में सोल्व नहीं कर सकता, कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पर फिर भी कैलकुलेटर यूज कर लो, क्यों दिमाग को थकाना है। यूज ऑलवेज चीप मेंटेलिटी। सो 225 इंटू 500 आपके पास में निकल कर आया है 0.089। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ई इक्विलिब्रियम जो है आपका वो क्या होगा, ग्रेटर दैन ई मैक्स से हो जाएगा। ठीक है, तो ई मैक्स कितना दे रखा था, 0.07। सो हमें भी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप क्या होती हैं, ई प्लस एफ। आप समझ में आ गया ना, ये चेक जो है ना ये सेटिस्फाइड नहीं है इस जगह पे। ठीक है, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू B² डिवाइड बाई 127 इंटू R। ठीक है, तो एफ बराबर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये एफ ई इधर चला जाएगा, B² बराबर 127 R माइनस ई मैक्स। आगे चलते हैं, वैल्यू फिर से पुट करते हैं, 1000 वाली 100 वाली 127 इंटू R आपको पता ही कितना है 500 माइनस ये यूज़ करेंगे
ई की वैल्यू 0.07। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा 1000 का स्क्वायर, वो तो कर ही रखा है अपन ने ऑलरेडी। कितना आया था आपके पास में, हाँ, डिवाइड बाई 127 इंटू 500 माइनस 0.07, आपके पास में आ गया ये 0.087। ठीक है, मैं गलत हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करवाना है। 127 आ तो सही पुट किया, 0.07। 0.089, 0.089 माइनस 0.07, ये हुआ आपके पास में 0.019। क्या हो रहा है भाई, कैलकुलेटर से वैल्यू सही नहीं निकल रही है। स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 500 माइनस 0.07, ये निकल गया आपके पास में 0.08748। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जो एफ है वो लेस देन कितना है, 0.15 से। सो वी प्रोवाइड ई बराबर ई मैक्स कितना, 0.07 ओनली। ठीक है, सो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हो जाएगा आपके 0.07, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, डिज़ाइन speed is given, so find super elevation for mixed traffic condition, and in this condition different vehicle move at a different speed. For practical condition, Indian IRC recommended that super elevation should be provided to fully contract the centrifugal forces due to 75% of design speed by neglecting the lateral friction. For design steps are involved into design of super elevation. स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड एंड नेग्लेक्टिंग द रोल ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। तो ई इक्विलिब्रियम क्या होता है, b²/225r होता है। अगर आप बात करते हैं जो ई कैलकुलेटेड होता है वो ई मैक्सिमम से, तो बी प्रोवाइड ई इज इक्वल्स टू ई इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होता है जब ई कैलकुलेट होता है ना, वो ई कैलकुलेटेड ई मिनिमम ई मैक्सिमम से कम होता है, तब हम ई बराबर ई इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं। अगर जो ई कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर दैन ई मैक्सिमम से, तो उस स्थिति में हम ई बराबर ई मैक्सिमम यानी 0.07 प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 में, इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ई बराबर ई मैक्सिमम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एफ। तो ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू b²/127r। तो एफ जो होता है लेस देन 0.15 हो, तो बी प्रोवाइड करते हैं ई इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम। उसके बाद बात करते हैं एफ ग्रेटर देन 0.01, तो फिक्स एफ बराबर 0.15 होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जब हम एफ बराबर 0.15 लेते हैं तो ई मैक्सिमम एंड find the actual velocity will be provided on the highway. So this is the formula and we provide this one, value of friction 0.15, so B design is less than B actual, then okay. अगर B design greater than B actual तो restrict the speed by providing speed limit sign. नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए एवरेशन टेस्ट loss in weight is 27 ग्राम, देन कोफिशिएंट्स ऑफ हार्डनेस विल बी, देन कोफिशिएंट्स ऑफ हार्डनेस कितनी हो जाएगी, कैसे होएगा, इसमें क्या दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है, लॉस दे रखा है
in weight 27 ग्राम, ठीक है। इन एब्रेशन टस्ट लॉस इज वेट 27 ग्राम। द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 27 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझते हैं। इसका कंसेप्ट है कोफिशिएंट्स ऑफ हार्डनेस इज कैलकुलेट फ्रॉम द डेरी एवरेशन टेस्ट या डोरी एवरेशन टेस्ट। इट इज इन इंडिकेशन ऑफ हार्डनेस इज दस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट्स। It is given by the coefficients of hardness. It is given by the coefficients of hardness, that is 20 minus loss in weight divided by 3. So for good aggregate it should be not less than 17. For medium quality aggregate it is between 14 to 70, ठीक है। एग्रीगेट हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज लेस देन 14 आर टर्म्ड एज टू बी सॉफ्ट फॉर द रोड वर्क। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, दिस इज द लिस्ट 1, दिस इज द लिस्ट 2। पहला आता है स्टॉप साइन, गिव वे साइन, स्पीड एंड लिमिट साइन, वार्निंग एंड साइन। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर, दूसरा था सर्कुलर इन शेप, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इट्स अपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड, ऑक्टागोनल शेप, इन्वर्टेड ट्राइंगल विद द अपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड कौन सा होता है, ऑक्टागोनल शेप के अंदर जो स्टॉपिंग साइन जो वर्ड होता है ना वो ऑक्टागोनल शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है गिव वे। गिव वे क्या होता है, गिव वे में ये क्या होता है, इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है विद एन अपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ऐसे ये गिव वे का साइन होता है। उसके बाद में आता है सी, स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जो होती है वो सर्कुलर होती है शेप के अंदर, सर्कुलर शेप की स्पीड लिमिट होती है, क्या होती है, सर्कुलर शेप की। उसके बाद में आता है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन जो होते हैं आपके, वार्निंग साइन होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल विद अपेक्स पॉइंट अपवर्ड, ठीक है। सो ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो स्टॉप साइन पता चल गया आपको, ऑक्टागोनल में होता है। गिव वे जो साइन होता है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल विद इट्स अपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड होता है। स्पीड लिमिट जो होती है आपकी सर्कुलर शेप के अंदर होती है, और जो वार्निंग साइन जो होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है विद इट्स अपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। टोएटरी, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस के बारे में, तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैंडेटरी साइन बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी दैट द ड्राइवर मस्ट ओबे दीज साइन। If the driver fail to obey them, the control agency has to right to take legal action against the driver. These signs are primarily meant for the safety of the other road user and generally black legends on the white background. Generally black legends on a white background. They are circular in shape with रेड बोर्ड। एक्सेप्शन की बात करते हैं, स्टॉप साइन, गिव वे साइंस आर प्रोहिबिटरी साइन हुज शेप आर नॉट सर्कुलर। नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग साइन और कॉशनरी साइंस के बारे में। दीज गिवन इंफॉर्मेशन टू द ड्राइवर अबाउट द इम्पेंडिंग रोड कंडीशन। The color convention used for these types of sign that the legal will black in color with white background. The shape used in upward triangle or diamond shape with the red borders. Next आता है informative signs. Informative signs, these also called guide signs, are provided to register the drivers to the reach their desired destination. These are predominantly meant for the driver who are unfamiliar to the place. Generally, the shape is in rectangular. Determine the shape stopping
speed distance for the design speed is 14 meter per second for two-way traffic on the two-lane road, assuming the coefficient of friction is 0.28 and reaction time is 2 seconds. 0.28 और रिएक्शन टाइम इज़ 2 सेकेंड्स। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 14 इंटू 18 डिवाइड बाई 5। किसमें क्यों लिया अपन 18/5, क्योंकि इसको किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है, इसलिए ये हो जाएगा 15.4 किलोमीटर पर आवर्स। या कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन दे रखा है वो दे रखा है 0.28। ठीक है, टाइम रिएक्शन टी बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 2 सेकेंड। नेक्स्ट आता है विनो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक विद टू लेन। किसकी, तो क्या हो जाएगा, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की फॉर टू वे ट्रैफिक विद टू लेन्स के लिए। तो एस टी क्या हो जाएगा इस जगह पे, बी टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2GF, हमेशा की तरह पुराना ही फार्मूला, पॉपुलर फार्मूला। तो 14 इंटू 2 प्लस स्पीड कितनी दे रखी है आपको 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.28। तो ये हो जाएगा आपका 63.73 मीटर। समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। एट एनी स्पॉट हैविंग सफिशिएंट लेंथ टू enable the driver to stop the vehicle traveling at a design safety without collision with any other obstructions. The stopping side distance is a sum of the lag distance and the braking distance. Lag distance is the distance of the vehicle traveled during the reaction time t and is given by bt, where v is the velocity in meter per second square. Braking distance is the distance traveled by the vehicle during the braking operation. SST की बात करें तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज गिवन बाय द SSD इज इक्वल्स टू BT प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2GF। सो बी जो है वो डिज़ाइन स्पीड इन मीटर सेकेंड है, टी जो है रिएक्शन टाइम इन सेकेंड 2.5 सेकेंड होता है, जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एफ जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। की पॉइंट्स ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है जो अभी अपन ने किया था। ठीक है, की पॉइंट समझ लेते हैं। फॉर टू वे ट्रैफिक द सिंगल लाइन इज 2 SST हो जाता है, 2 इंटू इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए मल्टीपल हो जाता है 2 से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SST और द एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड इज द डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर ड्यूरिंग द नाइट ड्राइविंग अंडर द illumination of the headlights. Safe side distance to the enter into the intersection. नेक्स्ट बात करते हैं। The ruling design speed on the national highway in plain terrain as IRC recommendation is 100 km per hours according to IRC. Ruling design speed. नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन स्पीड के बारे में। डिज़ाइन स्पीड इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन कंटिन्यूसली रन सेफली अंडर द फेवरेबल कंडीशंस. It is the most important factor controlling the geometric design elements of highway. The design speed obviously has to be correlated with the terrain conditions, and the classification of the highway like national highway, state highway, etc. is given in the below table. पहला आता है क्लासिफिकेशन, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेन टेरेन एंड स्टीप टेरेन। प्लेन टेरेन जो होता है ये रूलिंग और मिनिमम होता है, रूलिंग मिनिमम, रूलिंग मिनिमम, रूलिंग मिनिमम। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो प्लेन जो टेरेन में होती हैं वो होती हैं 100 रूलिंग होती हैं और 80 मिनिमम होती हैं। रोलिंग टेरेन के अंदर जो होती हैं वो 80 से 65 होती हैं। माउंटेन टेरेन के लिए 50 से 40 होती हैं, 50 और 40 होती हैं। ठीक है, स्टीप के लिए कितनी होती हैं, 40 से 30 होती हैं। ये चीज़ें आपको
रटनी है। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 80-65 होती हैं। किसके लिए? प्लान के लिए। रोलिंग के लिए होती है 65 से 50 होती हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 65 से 50 होती हैं, इसके लिए 50 से 40 होती हैं। रोलिंग टेरेन के लिए ब्लेज रोड के लिए 50 से 40 होती हैं और रोलिंग टेरेन के लिए 40 से 25 होती हैं। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, रटना है ये चीज़। नेक्स्ट बात करता है इन द पेनिट्रेशन मैकडैम कंस्ट्रक्शन द बिटुमिन इज ए spread after aggregates are spread and compacted. Spread after the aggregates are spread and compacted. Pre-mixed with the aggregate and then spread now. Spread before the aggregates are spread and compacted. Pre-mixed with aggregate and then spread and compacted. So in penetration macadam construction, the bitumen is sprayed after aggregate are spread and compacted. समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। पेनिट्रेशन मैकडैम के बारे में, बिटुमिनियस पेनिट्रेशन मैकडैम और ग्राउटेड मैकडैम इज यूज्ड एज ए बेस और बाइंडर कोर्सेज। The coarse aggregates are first spread and compacted well in dry state, and after that hot bituminous binders of relative of high viscosity is sprayed in fairly large quantity at the top. The bitumen penetration into the void from the surface of the compacted aggregate, thus filling up a part of the voids and binding some stone aggregates together. Full grout adapted in regions of the heavy rainfall and semi grout is adapted in region of the moderate rainfall and traffics. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैंकमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, फ्लेक्सिबल ओवरले और फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, रिजिड ओवरले और रिजिड पेवमेंट्स, फ्लेक्सिबल ओवरले और रिजिड पेवमेंट्स, रिजिड ओवरले और फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स नहीं, फ्लेक्सिबल ओवरले और फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स दोनों ही। ओवरले और फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स क्या होगी? फ्लेक्सिबल होगी। Blankman beam deflection method. The Blankman beam method is thus widely used to evaluations of the structural capacity of existing flexible pavements and also estimation and design of flexible overlay. क्या बोला उसने? The Blankman beam method is thus widely used for evaluation of the structural capacity of existing flexible pavements and also estimation and design of the flexible overlays for the strengthening of any weak pavements for highways. ठीक है, दोबारा पढ़ ले इसको। Also estimation and design of flexible overlay for strengthening of any weak pavement for highway. The Blankman beam measure the deflection of flexible pavement under moving wheel load. ठीक है, over the thickness is given by the h बराबर 550 log dc by da, where dc is a corrected round deflection and da is a allowable deflection. नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड के बारे में। ग्रुप इंडेक्स मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड करता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे, यस बेस्ड करता है। शेयर स्ट्रेंथ पे नहीं करता है। सीवीआर वैल्यू पे नहीं करता है। परसेंटेज फाइनर्स पे यस करता है। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? ए और डी, ऑप्शन 3। कंसेप्ट कहाँ पहुँच गए? 2 मिनट में। ग्रुप इंडेक्स मेथड की बात करते हैं। इट इज एम्पेरिकल मेथड दैट बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द सोइल सबग्रेड्स। इन दिस मेथड द थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज डिसाइड बेस्ड ऑन द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू विच इज गिवन बाय द GI बराबर 0.02 0.0 AC
जी आई बराबर 0.2 A प्लस 0.05 AC प्लस 0.01 VD. A is the percentage of soil passing through the 75 mu sieve in a exceeds of the 35%, not exceeding 75%. B is the percentage of soil passing through 75 microns sieve in excess of 15%, not exceeding 55%. Liquid limit in percentage of excess 40% of 40% should not be greater than 20%. Plasticity index in case of 2% is greater than 20%. ठीक है. इन परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन्स, ये एक्सीड करेगा 35% से, और ये जो कि नॉट एक्सीड होगा 75% से. ठीक है. परसेंटेज सॉइल पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन स्वीप इन एक्सेस इज 15%, नॉट एक्सीडिंग 55% and not exceeding 75%. Liquid limit in percentage in excess is 40%, should not be greater than 20%. Plasticity index in excess of 10% is greater than 20%. ठीक है. अब यहाँ बात करते हैं. द GI वैल्यू ऑफ सॉइल वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर 20. द फॉलोइंग टेबल शो इन द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड GI वैल्यू. गुड सॉइल की बात करें तो 0 से लेकर 1 तक होती हैं. फेयर सॉइल की बात करें 2 से लेकर 4 तक होती हैं. पुअर सॉइल की बात करें तो 5 से लेकर 9 तक होती है. वेरी पुअर सॉइल की बात करें तो 10 से लेकर 20 तक होती है. ठीक है. फेयर सॉइल, पुअर सॉइल, वेरी पुअर सॉइल.